Hello students, in my last video I have discussed the agriculture sector on the eve of Indian economy. That means what was the condition of Indian agriculture sector on the eve of economy. Today with the help of this video I am going to discuss the industrial sector on the eve of independence. Means what was the condition of Indian industrial sector on the eve of independence. Well, as we all know that prior to the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality. But the British Raj contributed in their decay. And there is a word, systematic deindustrialization is a term that describes the status of industrial sector during the British rule. And it implied two things. Number one, decay of handicrafts. Decaying of handicraft means that, as we know, the handicraft industries used to be the main industrial sector of India before the arrival of Britishers. So Britishers, what they did, they started decaying this industry from the India. And what they have done for that, what they did for that, they have deindustrialized the industry. By saying the deindustrialization means that they have started the reducing the number of industries, or I can say they have started the abolishing the industries from India. मतलब धीरे धीरे भारत से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको वो लोग खत्म करने की पॉलिसी पर काम करना शुरू किए. एंड देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स बाय अप्लाइंग विच दे बिकम एबल टू डू दैट. व्हाट दे डिड? नंबर वन इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. Discriminatory tariff policy means that they have adopted a policy of increasing the export and decreasing the import. Means whatever the materials, whatever the products were being manufactured in India was supposed to be exported to the other countries at a very high rate due to increased taxes. On the other hand, the materials or the products which were manufactured in European markets were introduced to India at a decreased interest rate because of that low import taxes. Getting my point? भारत में बनने वाली चीजों का जो एक्सपोर्ट विदेशों में होता था उसके ऊपर उन लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया, और जो बाहर से बनी चीजें जो इंडियन मार्केट में आती थी उस पर उन्होंने टैक्स घटा दिया. सो व्हाट दे बिकम एबल ऑफ, इससे करके उनको क्या मिला कि दैट दे हैव जनरेटेड ह्यूज डिमांड ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट इन इंडिया. बाहर के बने हुए प्रोडक्ट जो कि भारत में सस्ते बिकते थे उसका उन्होंने डिमांड जनरेट किया, और जो भारत में बनी हुई चीजें बाहर जाती थी उसका उन्होंने डिमांड को डिक्रीज किया. सो अगर बाहर माल जाएगा नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं, कोई उसको खरीदेगा नहीं, तो उसको बनाएगा कौन? और जब बनाएगा नहीं तो इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जाएगी. सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ प्लान. द सेकेंड वन इज disappearance of princely courts. Prior to the British rule, Nawabs, Rajas, Princes and Emperors ruled different parts of the country. अंग्रेजों के आने के पहले भारत में नवाबों का, राजाओं का, ये सब शहजादों का ये बड़ी मान्यता थी, और ये जो थे दे because of them, because of their appreciation, because of their efforts, the Indian handicrafts got name and fame throughout the world. दुनिया के बाकी देशों में भारत की जो कला हस्तलिपि इतनी प्रसिद्ध हुई, that was because of their efforts.
कि वो लोग इसको उन लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। बट विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स ये प्रथा जो धीरे धीरे खत्म हो गई, नवाब नहीं रहे, राजा नहीं रहे, तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली द एफर्ट्स विच वाज मेड बाय देम टू अप्रिशिएट दीज प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टार्टेड गेटिंग एट अ लोअर साइड। धीरे धीरे इनका प्रचलन कम होता चला गया। नंबर 3, competition from machine made products. In the European market, they were manufacturing the products with the highly evolved and modern techniques, modern machines. These facilities was not available to the Indian manufacturers. Suppose if any Indian manufacturer had received any order at that time, तो उसको बनाने में उसको इतना टाइम लग जाता था कि जब ऑर्डर आया उसको बनाना शुरू किया, बनाते बनाते इतना टाइम लग गया कि डिमांड ही खत्म हो गई। ऑन द अदर हैंड यूरोपियन कंट्री में उनके पास, उनके प्रोड्यूसर्स के पास अच्छी मशीनें थी, अच्छी इंडस्ट्रीज थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से वो काम को जल्दी और कम कॉस्ट में पूरा कर लेते थे। So this was the competition that Indian manufacturers had to face because of the machine. Next is new pattern of demands. New pattern of demands, by saying this means कि जब विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट जब भारत में लोगों के द्वारा पसंद किए जाने लगे, अप्रिशिएट किए जाने लगे, बिकॉज वो मॉडर्न होते थे, जल्दी रेडिली अवेलेबल होते थे, प्लस सस्ता मिल जाता था भारत में। बिकॉज ऑफ व्हाट, जैसा कि पहले भी बताया, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, बाहर की बनी हुई चीज़ों का डिमांड उन्होंने भारत के मार्केट में क्रिएट किया। यहाँ की डिमांड बढ़ी क्योंकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती थी और उनको लगता था कि जो बाहर का माल आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा होगा। इवन टुडे वी आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फॉरेन ब्रांड। फॉरेन की बनी हुई चीज़ है तो अच्छी होगी, ये दिमाग में आज है। और ऐसा नहीं कि ये आज है, ये बहुत पहले से ऐसा चला आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ ideas what Britishers used to instill in the Indian consumer's mind. By doing this, they created demand for the foreign products. और जब foreign products भारत को ज़्यादा बिकने लगे तो Indian products की धीरे धीरे वैसे ही मांग खत्म हो गई। And next is introduction of railway. Railway is considered to be the one of the most lifeline, one of the most important एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी टुडे। आज भारत की अर्थव्यवस्था में इंडिया रेलवे का बहुत ही बड़ा योगदान। इट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड इट इज रिगार्डेड एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसा माना जाता। बट उस समय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे आर्मी वॉज जस्ट टू फेलिसिटेट द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। उस समय जो था, ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे को इसीलिए शुरू किया था कि उनके प्रोडक्ट जो हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट भारत के देश के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सके। Whereas this facility was not available to the Indian products. So these were the points, these were the policies what the Britishers adopted to de-industrialize the Indian industrial sector on the eve of independence. उसमें एक और बात थी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज what we are witnessing today, जिस तरह की मॉडर्न इंडस्ट्री आज हमारे पास है, इसकी ड्यू उन्हीं के समय पड़ी। अंग्रेजों के समय ही इसकी शुरुआत हुई। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद पूरे विश्व में
द स्कैरिसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स हो गई। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल गुड्स की कमी को महसूस किया जाने लगा। अंग्रेज खुद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बिजी थे, जिसकी वजह से दे कुड नॉट गिवन देयर आइज टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल ग्रोथ और दी स्कैरिसिटी ऑफ गुड्स। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत सहूलियत जो भारतीय कुछ प्राइवेट लोग थे जिन्होंने उठाया और उस समय इंडस्ट्रीज की शुरुआत भारत में की। जैसा कि इन द ईयर 1907 1907 ईस्वी में सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड इन बाय जमशेदजी टाटा। ये टाटा कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है अपने देश की और इसकी नींव अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही पड़ी। और इसी तरह और भी कई तरह की सीमेंट इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई अंग्रेजों के समय। सो ऑल इन ऑल, इफ आई समराइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द eve of independence, there are few points. Number 1, the handicraft industry was systematically destroyed. और कैसे, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। Point number 2, the modern industry showed a bleak expansion. जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही नाम मात्र का एक्सपेंशन उसमें उस समय हुआ अंग्रेजों के दौरान। नंबर 3, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का क्या मतलब कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और भारत में उनका लगभग नॉन एग्जिस्टेंस था, बिकॉज इंडियंस did not have that kind of facility. उनके पास मशीनें नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट वो बना नहीं पाते थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, while the traditional handicraft industries were decaying, modern industries remained in infant stage. मतलब कि जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा खत्म की गई, और एक तरफ तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी दैट वाज गोइंग डाउन, एंड द मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वी वांटेड टू एस्टैब्लिश इन इंडिया, वो अभी भी अपने इन्फेंट मतलब शुरुआती स्टेज पर थी। And this again pointed to the backwardness of Indian economy with little or no evidence of dynamic change. और ये सारी चीजें देखकर हम कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो थी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी on the eve of independence with little or no evidence of dynamic change. So this is all about the industrial sector on the eve of independence. I hope you have understood this explanation, and again I request you to go through this video, and if you do find any problem, ask me through WhatsApp or by personal calling. So this is up to now in this video. In next video I shall be coming with the next topic of your chapter. Until then, bye bye, and take very good care of yourself. Thank you very much.